قرآن کریم دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے 4 طریقے اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1، دلائل عقلیہ کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے، دلائل نقلیہ کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے، دلیل وحی کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے، اور حلف یعنی قسم کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ دلائل عقلیہ کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دلائل عقلیہ کی 3 قسمیں ہیں: دلیل عقلی محض، دلیل عقلی اعترافی، دلیل عقلی مسقط للخصم۔ دلیل عقلی محض کی تعریف هو الذی تکون مقدماتہ مسلمۃ عند الخصم ولا یابى عنہ العقل، کہ اس میں ایسے مقدمات پیش رکھیں کہ جو مد مقابل بھی تسلیم کرتا ہو اور عقل بھی اس سے انکار نہ کرے۔ اس کی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 5 دلائل عقلیہ پیش کیے ہیں: الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اب یہ دلائل عقلیہ ہیں 5، اور اس میں جو دلائل عقلیہ 5 دیے گئے ہیں یہ دلائل عقلیہ محض ہیں کہ مد مقابل مشرکین مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور عقل بھی اس سے انکار نہیں کرتی۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آسمانوں کو، زمین کو، آسمانوں سے پانی کو، پھر اس کے ذریعے زمین سے پھلوں وغیرہ کو، نباتات وغیرہ کو نکالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا خاصہ ہے اور وہی کرنے والی ہے۔ تو دلیل عقلی محض وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسے مقدمات پیش رکھیں کہ جن کو مد مقابل بھی تسلیم کرتا ہو اور عقل بھی اس سے انکار نہ کرتی ہو۔ دوسری دلیل عقلی اعترافی، ایسی دلیل پیش کرو کہ جس کا تعلق عقل سے ہو اور مد مقابل اعتراف بھی کرتا ہو۔ هو الذی تکون مقدماتہ مسلمۃ عند الخصم مال اعتراف منہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 اور 85، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کس کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو، سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے اللہ کی۔ زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا ہے۔ اب یہ دلیل عقلی ہے، اور ایسی دلیل عقلی ہے کہ مد مقابل مکہ کا مشرک جو ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا ہے۔ آگے ایک اور اسی کے ساتھ دلیل، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، میرے پیغمبر ذرا ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟
सयक़ूलून लिल्लाह, तो अन करीब कहेंगे अल्लाह है। आगे फिर अल्लाह ताला ने जिक्र किया, कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमूना सयक़ूलून लिल्लाह। अब ये देखो, ऐसी दलीलें पेश की जा रही हैं कि मद्दे मुकाबिल इनको तस्लीम भी करता है और एतराफ भी करता है। आगे सूरतुल अनकबूत 21वां पारा और आयत नंबर 61। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति, और अगर मेरे पैगंबर आप इनसे सवाल करें कि किसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, वसख्खर अश-शम्स वल कमरा, और किसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को, लयक़ूलुन्न अल्लाह, अन करीब कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक ने। तो अब देखो, मद्दे मुकाबिल मक्का का मुशरिक भी इस बात को तस्लीम कर रहा है। तो यह दलील अक्ली एतराफी है कि ऐसी दलील पेश करो जिसका ताल्लुक अक्ल से हो और मद्दे मुकाबिल एतराफ भी करता हो। तीसरी दलील अक्ली मुस्कित लिल खसम, ऐसी दलील अक्ली कि मद्दे मुकाबिल को चुप करा दे, आप पूछे तो भी जवाब न दे। हुवल्लज़ी तकूनु मुक़द्दिमातुहु इंदल खसम माल इल्जामे, इसको अक्ली इल्जामी मुस्कित लिल खसम भी कहते हैं। इसकी मिसाल सूरतुल अनआम पारा नंबर 7 आयत नंबर 40। कुल अराइतुम, मेरे पैगंबर इनको कहो जरा बताओ, इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर आ जाए तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जात का अजाब, औ अततकुमुस्साअतु, या तुम्हारे पास क़यामत आ जाए, अगैर अल्लाह तदऊना, क्या अल्लाह के अलावा को तुम पुकारोगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम क्या हो, सच्चे हो तो। अब उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरे पैगंबर आप पूछें भी सही, तो पूछने के बावजूद वो जवाब नहीं देंगे। क्यों? अगर जवाब देते हैं तो उनको अकीदा छोड़ना पड़ता है कि ये सब कुछ तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक करने वाली है, कि जमीन व आसमान को पैदा करने वाला, और जो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे बात पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब आ जाए और क़यामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के अलावा को पुकारोगे? क्योंकि उनको पता था कि जब ऐसे अजाबात और मुश्किल आ जाती है तो फिर उसमें हम खालिसतन अल्लाह को पुकारते हैं। फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्की दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्तियों पर सवार होते थे तो खालिस अल्लाह को पुकारते थे। आगे दूसरी दलील नकली, कुरान पाक दावे को साबित करने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल करता है। पहला तरीका दलाइल अक़लिया के जरिए कुरान दावे को साबित करता है, उसकी 3 किस्में बयान हो गई। दलील अक़ली महज़, दलील अक़ली एतराफ़ी, दलील अक़ली मुस्कित लिल ख़सम। उसकी तारीफें भी हो गई और मिसालें भी बयान कर दी हैं। अब दूसरा तरीका
جو कुरान मुक़द्दस दावे को साबित करने के लिए अपनाता है वो है दलील नकली। दलील नकली की 5 किस्में हैं। पहले दलील नकली की तारीफ सुन लें। दलील नकली कि जो मैं बात कह रहा हूं ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मुझसे पहले भी बरगुजीदा लोगों ने कही है, यानी दावे पर नकल पेश की जाए कि जो बात मैं कह रहा हूं यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मुझसे पहले भी बरगुजीदा लोगों ने कही है। अब किधर कही, किसने कही, तो हम वहां से नकल पेश करेंगे, इसको दलील नकली कहते हैं। अब फिर आगे दलाइल नकलिया की 5 किस्में हैं। दलील नकली मिनल अंबिया, दलील नकली मिनल मलाइका 2, दलील नकली मिनल इबादिस सालिहीन 3, दलील नकली मिनल जिन्नात 4, दलील नकली मिनल कुतुब साबिका 5। कि अंबिया से नकल पेश की जाए। फिर दलील नकली मिनल अंबिया की 2 किस्में हैं। दलील नकली मिनल अंबिया इनफिरादी, दलील नकली मिनल अंबिया इजमाई। दलील नकली मिनल अंबिया इनफिरादी कि एक एक नबी के अलग अलग वाकया को उस दावे पर बतौर नकल के पेश किया जाए। मसलन सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकया को पेश किया जाए कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या कौम उअबुदुल्लाह, अब जो बात मैं कहता हूं है मक्का के मुशरिको कि एक अल्लाह की इबादत करो, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही कही है। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही बात कही है, या कौम उअबुदुल्लाह, ये सिर्फ मेरा दावा नहीं है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही बात कही है। दलील नकली मिनल अंबिया इनफिरादी। दूसरी दलील नकली मिनल अंबिया इजमाई, यानी तमाम अंबिया से इकट्ठी दलील पेश की जाए। सूरत अन-नहल आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अब्दुल्लाह। और अलबत्ता ताकीक भेजा हमने फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल, और उसने दावत क्या दिया कर अने अब्दुल्लाह, ये कि अल्लाह ही की इबादत करो। और ये जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान पाक में वाकयात जिक्र किए जाते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन वाकयात के मुताल्लिक फरमाते हैं वालम अन्नल मकसूद मिन ज़िक्र क़ससिल अंबियाए हुसूलुल इब्रति, कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया और कसस जो जिक्र किए जाते हैं तो इससे मकसूद हुसूल इब्रत होता है, ना कि कुरान किस्सा बराए किस्सा बयान करता है।
बल्कि अल्लाह का कुरान अंबिया के वाकयात को इबरत के लिए, इबरत के हुसूल के लिए बयान करता है। दलील नकली मिनल अंबिया, ये हो गई दलील नकली मिनल मलाइका, यानी ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, फरिश्ते भी यही बात कहते हैं। दलील नकली मिनल इबादिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे भी यही बात करते हैं। दलील नकली मिनल जिन्नात, जिन्नात भी यही बात करते हैं। इन्ना समिअना कुरान आजबा यहदी इलर रुश्द, और दलील नकली मिनल कुतुब साबिका, पहली किताबों के अंदर भी यही बात लिखी है। वातैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला। अब उस तौरात में क्या मजमून है कि तुम अल्लाह के अलावा कोई कारसाज ना बनाओ। तो मैंने इब्तिदा में बताया है कि दलाइल जो कुरान पाक में दावे को साबित करने के लिए जिक्र किए जाते हैं वो चार तरह के होते हैं। दलाइल अक्लिया के जरिए कुरान पाक दावे को साबित करता है, दलाइल नकलिया के जरिए, दलील वही के जरिए, हलफ के जरिए। फिर दलाइल अक्लिया की तीन किस्में, अक्ली माज, अक्ली इतराफी, अक्ली मुस्कित लिल खसम। फिर आगे दलाइल नकलिया, उसकी पांच किस्में, दलील नकली मिनल अंबिया, दलील नकली मिनल मलाइका, दलील नकली मिनल इबादिस सालिहीन, दलील नकली मिनल जिन्नात,